With all my heart, I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I hope you really enjoy that song. और आशा है कि आपने इस गीत का आनंद उठाया। We are very happy to reach you through this program. आप इस प्रोग्राम के द्वारा हम आप तक पहुंच रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। Even in this life, यहाँ तक कि इस जीवन में भी many people go through lot of problems. बहुत से लोग बहुत सी समस्याओं में से होकर जाते हैं, And all these problems, you can trace it back to something in the mind. और ये सारी जो समस्याएं अगर आप इसके पीछे अच्छे से देखें तो ये सब कुछ मन से शुरू होता है। Even the sicknesses people go, they call it psychosomatic. और देखिए यहाँ तक कि कुछ बीमारियां जो लोगों को होती है जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। Sometimes you think wrong feelings come and then your body is affected. आप कई बार गलत सोचते हैं, गलत महसूसीकरण आता है और फिर उसके कारण आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। Lot of misunderstanding takes place in family, बहुत सी गलत धारणाएं, गलत विचार जो है, गलत फहमी परिवार में होती है, in relationships, संबंधों में होती है, in workplace, काम में या दफ्तर की जगह पर, even among business partners. यहाँ तक कि बिजनेस पार्टनर के बीच में भी। All these things happen because of some wrong thinking. ये सब कुछ होता है बस किसी तरह के गलत सोच के कारण। Some people are very angry with God because of their wrong thinking. बहुत से लोग अपनी गलत सोच के कारण परमेश्वर पर बहुत क्रोधित हो गए हैं, Some people are very upset with themselves because of their wrong thinking about themselves. क्योंकि वो कुछ लोग तो अपने बारे में गलत सोचते हैं, इसीलिए वो खुद पर बहुत नाराज हैं। You know, it all happens in the mind. ये सब कुछ हमारे मन में शुरू होता है। If your mind is misdirected, अगर आपका मन गलत तरह या गलत दिशा में जाता है you will go in a very wrong direction. तो फिर आप भी उसी गलत दिशा में जाएंगे। So you see, इसलिए देखिए, I'm going to just speak to you मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ about the incident when Jesus was born. उस घटना के बारे में जब यीशु का जन्म हुआ। The Bible says the angels appeared and spoke to a young girl named Mary, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने एक जवान लड़की के सामने, मरियम के सामने प्रकट हुआ that she is going to give birth to a baby, though she was a virgin. और उसे बताया कि हालांकि वो कुंवारी है लेकिन उसे एक पुत्र होगा। And she was engaged to one person called Joseph. और यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ में उसकी मंगनी हो चुकी थी। So when Joseph came to know about this, जब यूसुफ इसके बारे में जानता है, the Bible says in the first chapter of Matthew, बाइबल मत्ती के पहले अध्याय में कहती है, he was a very nice man. वो तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। Joseph was a good man. यूसुफ जो भला व्यक्ति था। So he did not want to put Mary in a public shameful situation. वो मरियम को सब लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। So the Bible says secretly he wanted to separate her, और इसलिए बाइबल कहती है कि वो गुप्त में या चुपचाप ही वो उससे अलग हो जाना चाहता था, or rather put her away, इसके बजाय कि वो उसे दूर कर दे। so that he will not marry her. और उसने निर्णय लिया कि अभी वो उससे शादी नहीं करेगा। But you know, लेकिन आप जानते हैं, many years back, बहुत साल पहले, many hundreds of years back, सैकड़ों साल पहले, during the time of a prophet called Isaiah, यशायाह भविष्यवक्ता के समय में through him उसके द्वारा a prophecy was given. भविष्यवाणी दी गई थी। And the prophecy said, और वो भविष्यवाणी कहती थी, a young virgin shall give birth to a baby boy, एक कुंवारी जो है उससे एक बेटा उत्पन्न होगा and he shall be called Emmanuel. और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, That means God with us. यानी परमेश्वर हमारे साथ है। And now it is happening after so many hundreds of years. अब ये कई सैकड़ों साल बाद हो रहा था। The angel comes to Mary स्वर्गदूत मरियम के पास में आता है and tells, you're going to have a baby boy, और वो कहता है कि तुझे एक बेटा होगा। though you are not married. हालांकि उसका विवाह नहीं हुआ था। This is going to happen because of God's power. ये तो परमेश्वर की सामर्थ के कारण होने वाला था। And you call his name Jesus. और तुम उसका नाम यीशु रखना। That means he will set his people free from sin. इसका मतलब है कि वो इन लोगों को पाप से आजाद करेगा। And she agreed. और वो सहमत हो गई। She said, उसने कहा, let your will be done. प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। But Joseph, लेकिन यूसुफ good man, जो भला व्यक्ति था, didn't want to embarrass her, वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। but he thought, तो उसने सोचा,
Privately, let us get rid of her. चलो धीरे से किसी को न बताते हुए इससे पीछा छुड़ा ले। But anybody in Joseph's situation, if you don't understand what is happening, will be confused like him. अगर निश्चय कोई और यूसुफ की दशा में होता तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर पूरी तरह से गड़बड़ी में आ जाता। But Joseph did not make the mistake because an angel appeared and convinced him. यूसुफ ने गलती नहीं की क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उसे सहमत किया। The angel told, "Do not fear. और स्वर्गदूत ने कहा तो बिल्कुल मत डर। The baby that is conceived in Mary's womb is of the Lord." जो बालक मरियम की कोख में है वो तो परमेश्वर की ओर से है। And the Bible says Joseph did not know Mary until the baby was born. और बाइबल कहती है कि यूसुफ मरियम के पास तब तक नहीं आया जब तक कि उस बालक का जन्म नहीं हुआ। Just imagine. जरा कल्पना कीजिए। What a great privilege to be a father for Jesus. और सच में कितना महान सौभाग्य है कि यीशु के लिए वो पिता हो जाए। To be responsible to take care of the baby child. कि वो इस बालक यीशु की पूरी तरह से जिम्मेदारी, पूरी तरह से उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उठा ले। But Joseph would missed every blessing if he had listened to his wrong thinking. अगर यूसुफ ने अपनी उस गलत सोच को सुना होता या उसके अनुसार किया होता तो यूसुफ सारी आशीषें खो देता। That's why I was telling wrong thinking. और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि गलत सोच। My friends, wrong thinking comes from what is happening around us. मेरे दोस्तों, जो गलत सोच है वो तो हमारे आसपास जो हो रहा है उसके कारण ही आती है। In the Bible, बाइबल में you read about Eve. हम हवा के बारे में पढ़ते हैं। She was okay, वो ठीक थी, but she listened to the devil. लेकिन उसने शैतान की बात सुनी। When she listened to the devil, और जब उसने दुष्ट की बात सुनी she only gave her ears, तो केवल उसे ये सुनने को मिला, but the whole mind was corrupted. केवल उतना ही नहीं लेकिन उसके साथ साथ में उसका पूरा मन जो है वो प्रदूषित हो गया And she became disobedient. और उसने आज्ञा भंग की। Many times, कई बार we look at the circumstances. हम परिस्थितियों को देखते हैं, We listen to people. हम लोगों की सुनते हैं, We learn their attitude. हम उनकी मनोदशा को सीखते हैं, We get wrong advices from wrong people. हम गलत लोगों से गलत सलाह लेते जाते हैं। Many people get advices mostly from wrong people. बहुत से लोग जो है वो तो अक्सर या ज्यादा से ज्यादा गलत लोगों से ही सलाह लेते हैं। A person who's got difficulties in marriage ऐसा व्यक्ति जिसके वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है will be very happy to find their friend who's got a similar problem so they can discuss their problems. वो बहुत ही खुश होते हैं अपने ऐसे दोस्त को पाकर जिसको ऐसी समस्या है ताकि वो इस बात के बारे में आपस में चर्चा कर सके। And that person who's already hurt just like this person will only look at things from their hurt. अब देखिए, ये व्यक्ति जो पहले ही इसी परिस्थिति के कारण चोट खाया है तो वो केवल अपने चोट के दृष्टिकोण से इन सारी बातों को देखता है। And they will give lot of advices out of their bitterness and disappointments. वो तो अपनी कड़वाहट के कारण या निराशा के कारण बहुत सी गलत सलाह देते हैं। School students, बच्चे, स्कूल जाने वाले, college students, कॉलेज के जाने वाले बच्चे, when they do something wrong जब वो कुछ गलत करते हैं or when something goes wrong, या फिर कुछ उनके साथ गलत होता है, they also are very comfortable taking advice from their friends. वो अपने ऐसे ही दूसरे दोस्तों के साथ में उनकी ओर से सलाह लेते जाते हैं। A person who's got a problem ऐसा व्यक्ति जिसे समस्या है doesn't spot the person who's got the answer. और वो ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढता जिसके पास में उसका उत्तर A है। person who's going through a marriage problem जो व्यक्ति वैवाहिक समस्या में से होके जा रहा है should look out to a person who's having a happy family, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसका पारिवारिक जीवन सच में खुश है, because they seem to have the answer what you're looking for. क्योंकि उन्हीं के पास में वो उत्तर मिलेगा जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। But generally people look for people with similar problems. लेकिन सामान्य रूप में लोग तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिनके पास में ऐसी समस्या हो So they feel they can understand them. ताकि वो ये महसूस करे, हाँ ये मुझे समझ सकते हैं। But they don't have the answer either. उनके पास में उत्तर नहीं होता है। So my friend, इसलिए मेरे what दोस्त, happens is क्या होता है, they are filled with wrong thinking. वो गलत सोच से भर जाते हैं। Wrong thinking comes from wrong advices from wrong people. गलत जो सोच है वो गलत लोगों से ली गई गलत सलाह के कारण ही आती है। You just look into your life. आप अपने जीवन में देखिए, Many opportunities will be missed because of wrong judgments and wrong thinking.
गलत तरीके से निर्णय लेना और गलत तरीके की सोच के कारण बहुत से मौके आप खो बैठे हैं, आशीष खो बैठे हैं। People have lost beautiful and wonderful friends because of wrong informations. लोग तो केवल गलत जानकारी के कारण अपने बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे दोस्तों को खो बैठे हैं। Some people have lost their jobs, they're moved away from the job because of their wrong imaginations. कुछ लोग तो बस अपनी गलत धारणा के कारण, गलत कल्पना के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। This wrong thinking. ये तो गलत सोच है। Many people have wrong thinking about God. बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में गलत सोचते हैं। So the devil has come to steal, kill and destroy. यानी जो शैतान है वो तो चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है। How does he affect relationships? तो फिर वो संबंधों पर कैसे प्रभाव How डालता does he affect friendships, है? जो वो कैसे मित्रता के ऊपर, दोस्ती पर प्रभाव डालता है families, और कैसे ऐसे व्यवहार करता है and your inner peace? और कैसे आपके भीतरी शांति को उस पर प्रभाव डालता है। He tries to alter your mind. वो मन को बदलने की कोशिश करता है। That's why, my friend, और इसीलिए मेरे दोस्तों, taking drugs, ड्रग्स लेना, drinking alcohol शराब पीना, will alter your mind. यह आपके मन को बिल्कुल बेकार कर देता है। You will be a nice person in the daytime, आप शायद दिन के समय बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे, but after evening 7 o'clock, you'll be another person. लेकिन शाम के 7 बजे के बाद में बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाते हैं। And how you treat people when you're drunk, जब आप शराब पीते हैं तो कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, you may forget it. आप शायद इसे भूल जाएं, But the people who have been inflicted with pain because of your misbehavior, they cannot forget it. लेकिन आपके जो गलत व्यवहार के कारण लोगों ने जो चोट खाई है वो उसे नहीं भूलते हैं। After that, the whole family is no more the same. और उसके बाद में जो पूरा परिवार है वो फिर शांति से नहीं रह पाता है। Any young person कोई भी जवान व्यक्ति who dreams to become somebody great, जो सच में कोई बड़ा होने का सपना देखता है, keep yourself away from anything that will alter your mind. आप अपने आप को ऐसी चीजों से दूर रखें जो आपके दिमाग पर असर डालती हैं। Taking drugs and drinking alcohol शराब पीना और फिर या फिर ड्रग्स लेना and doing all kinds of drugging और सब तरह की जो नशीली चीजें वो लेना will only ruin your future. तो फिर आप खुद को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। Will only make you do lot of blunders and mistakes. आप इसके कारण केवल बहुत सी गलतियां और बहुत से महान गलतियां करते रहेंगे। That's why in the Bible I like a beautiful verse. और इसीलिए बाइबल के सुंदर वचन मुझे पसंद है। If you want to become a king, अगर आपको राजा बनना है, if you are a king अगर आप राजा हैं and you want to maintain good judgment, और आप सही तरीके से जो न्याय लेना चाहते हैं उसे बनाए रखना चाहते हैं, don't even look at the drinks, he तो says. फिर शराब की ओर देखे भी नहीं। Don't even put your eyes on the drink. और वो कहता है कि तुम शराब की ओर एक नजर देखो भी मत। Why? क्यों? Because your mind will be altered. क्योंकि आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से ललचाएगा, लुभाएगा, बदल जाएगा। If your mental, spiritual radar is destroyed, अगर आपकी मानसिक आत्मिक जो सीढ़ी अगर वही नाश हो जाए, you can never steer your life properly. तो फिर आप अपने जीवन को बिल्कुल सही तरीके से स्थिर नहीं रख सकते हैं। Joseph was in a junction where he was really put to test. अब देखिए, यूसुफ एक ऐसे चौराहे पर था जहां पर मानो उसकी खुद की सच्ची परीक्षा हुई। His mind was very disturbed. उसका जो मन था वो मानो बिल्कुल डगमगाने वाला नहीं था। At that moment, और उस स्त्री के बारे में he could have gone to his friends, वो अपने दोस्तों के पास जाता है, and any friend at that moment would have only told, get rid of this girl. और अगर वो अपने दोस्त के पास जाता तो उस समय कोई भी दोस्त कहता ठीक है, इस मौके का तुम लाभ उठाओ। He could have gone and told his parents. वो जाकर अपने माता पिता से कह सकता था। Parents would have cried and said, what a shame you're trying to bring upon our family. शायद माता पिता कहते कि तू तो हमारे परिवार पर कितनी शर्मिंदगी लाने की कोशिश कर रहा है। Maybe he went to some medical expert. हो सकता है शायद वो किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाता, Maybe they would have advised him to go for an abortion. और वो हो सकता है कि शायद वो ये कहते हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम अबॉर्शन करवा लेना। All those words are wise in their own way. देखिए, ये सारे जो शब्द हैं वो अपने तरीके से बुद्धिमानी के शब्द हैं, But God was telling, लेकिन परमेश्वर कह रहा है I have got a beautiful opportunity in your life. मैंने तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही सुंदर मौका रखा है। But if you didn't understand the mind of God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के मन को नहीं समझते हैं, how can you walk in alignment with God? तो फिर परमेश्वर के साथ में कैसे मेल मिलाप के साथ चल सकते हैं? Joseph was very blessed.
निश्चय आप इस बात पर गौर करें। Joseph was very blessed because the angel came and stopped him from his wrong thinking. देखिए यूसुफ सच में आशीषित व्यक्ति था क्योंकि स्वर्गदूत ने इसे इस तरह से गलत सोच से उसे रोका था। His wrong thinking was secretly, privately, just get rid of the girl. अब देखिए ये जो है उसकी जो गलत सोच है, हाँ चलो ठीक है गुप्त में चुपचाप जैसे ऐसे लड़कियों के पीछे भागूंगा। I want to tell you, most of our wrong thinking make us to do things very secretive. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बहुत सी ऐसी गलत सोच है जो कि बहुत ही गुप्त रूप में हमें काम करने के लिए सोचने लगाती हैं। Your mommy may tell you, don't do this. Your daddy doesn't like what you're doing. और अगर आपकी माँ आपसे ये कहती कि तुम ये मत करना, तुम अगर ये करते हो तो तुम्हारे पिताजी को ये पसंद नहीं आएगा। Maybe your mommy, daddy say, don't have friendship with such a person. शायद आपके मम्मी डैडी ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ में, इस लड़के के साथ में दोस्ती मत रखना। Now a wrong thinking comes in your mind. अब आपके मन में गलत सोच आती है। What my mother knows. मेरी मम्मी को क्या पता है? My father has got no other work. मेरे पिताजी को कुछ पता नहीं। Then you start to deal that area of activity secretly. तो फिर वो वहां पर उस क्षेत्र में धीरे धीरे चुपचाप छिप छिप कर कुछ करने लगते हैं। You begin to hide things and pretend as if it's not happening and walking in total deception. और देखिए वो तो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं और ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कि मानो कुछ भी नहीं हुआ है और पूरी तरह से धोखे में रहते हैं। But when disaster strikes because of what has happened out of that relationship, लेकिन उनके संबंधों के कारण जो विपत्ति जब सामने आ जाती है, tears fill your eyes. तो आंसुओं से आपकी आंखें भर जाती है। And the parents also go through the pain. और माता पिता भी बहुत शोकित हो जाते हैं। Then they tell, I told you, why didn't you listen? और फिर तब वो कहते हैं मैंने तो तुम्हें पहले बताया था, तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया? But then it is too late. लेकिन उस समय तक तो बहुत देरी हो गई। But you see, the progress happens because of secretively you just do it. देखिए यहाँ पर आप छिप छिप कर इसे करते हैं, उसके कारण ये सारी चीजें जो है वो बढ़ती जाती है। People smile, people grin, and secretly they operate. लेकिन लोग तो देखिए कैसे जैसे मुस्कुराते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन गुप्त में पीठ पीछे काम करते हैं। But they don't know whatever is so secretive will come publicly one day. लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं कि जो कुछ भी वो छिप छिप कर रहे हैं एक दिन सबके सामने प्रकट हो जाएगा। Joseph was thinking very secretively, must somehow just ask the lady to go. और शायद यूसुफ इस रीति से सोच रहा होगा, हाँ शायद जैसे तैसे मैं गुप्त में इस औरत से कहूंगा ठीक है तुम चले जाना। What he thought very secret is written in the Bible and so public, now everybody knows about it. जो कुछ भी वो सोच रहा था कि ये जो बहुत ही गुप्त है, ये सब कुछ बाइबल में लिखा गया है और वो अभी सबके सामने सब लोग उसे जानते हैं। Once things become secretive, एक बार अगर ये हमारे दिमाग में आ जाए, the devil finds it easy to ride on that person. तो फिर बस उसके ऊपर में चलते रहना ये शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है। All big disasters that have been invited in people's life, और जो बड़ी बड़ी विपत्तियां जो लोगों ने स्वयं अपने जीवन में लेकर आई है, there'll be some that it'll be like a petty toy or their favorite toy hidden somewhere. और ये तो मानो एक उनकी ऐसे लाडली गुड़िया जैसे या बहुत ही पसंदीदा खिलौने के जैसे वो कहीं ना कहीं छोटे से खिलौने के जैसे छिपा कर रखते हैं। But when it bursts, then only they know, oh, what a fool I am. लेकिन जब वो विस्फोट पाता है, जब वो फूटता है, तभी हम जानेंगे अरे बाप रे ये सच में कितना भयानक था। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, guard your mind, अपने मन में क्या है, guard your thinking. अपने सोच की सुरक्षा करें। It's not only drugs that alter your thinking, ये ऐसी बात नहीं कि केवल नशे से ही आपका दिमाग काम करना बंद करता है। wrong philosophies, गलत विचारधाराएं, many different philosophies. बहुत सी अलग अलग विचारधाराएं, Those philosophies or thought patterns वो विचारधाराएं तो हमारे विचार करने के तरीका है that go against what mommy and daddy have taught us right from young. ये तो बिल्कुल उसके विरुद्ध में होते हैं जिसके बारे में पिताजी ने हमें बचपन से सिखाया है। Even if you can go to different nations and countries, शायद हो सकता है कि आप दूसरे देशों में गए हों, but it's not worth losing our roots. लेकिन ये सही नहीं है कि हम अपनी जड़ों को खो दें। It's not worth throwing away all the valuable lessons that mommy, daddy have spoken to us. माता पिता ने हमें जो बहुत ही कीमती पाठ सिखाए उसे भूल जाना ये इस योग्य नहीं। The whole world is ready to brainwash you. और देखा जाए तो पूरा संसार तो तैयार है कि आपके दिमाग को मानो धो दे। And you think some enlightenment has come. और आपको ऐसा लगता है कि देखो मुझे तो कोई नया प्रकाशन मिला है। Finally, you will be hurt. लेकिन अंत में आप ही को चोट पहुंचेगी। You know, people know to be faithful to our wife, our spouse,
is the very smartest thing you can do. देखिए, पति जो पत्नी जो है आपस में एक दूसरे के साथ में विश्वास योग्य रहे, यही सबसे अच्छी और ये सबसे महान चीज है। But some people think लेकिन कुछ लोग सोचते हैं fooling around with everybody हर एक के साथ में यहाँ वहां घूमना फिरना and thinking that you're the most romantic person in the world और ये सोचना कि हाँ मैं तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रोमांटिक आदमी हूँ and finally inviting problem और फिर अंत में खुद समस्या लेकर आ जाना, becomes a disaster. वो तो एक विपत्ति, एक विनाश हो जाता है। Some people, कुछ लोग it's just one small mistake, बस उनकी एक छोटी सी गलती, they've invited AIDS into their life. वो अपने जीवन में उसके द्वारा एड्स लेकर आ जाते हैं। It's a small thing that they did. एक छोटी सी गलती उन्होंने की, The wife left them पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है because they never analyzed क्योंकि उन्होंने कभी इस पर विचार नहीं किया all what the world is talking about. कि संसार किस बारे में कह रहा है। It's not the right thing. ये सही बात नहीं है। It's the blind man leading the blind. ये मानो ऐसा है जैसे अंधा अंधे को लेकर चलता है। You too आप भी can make good decisions आप भी अच्छे निर्णय ले लें if you would understand how to hear the voice of God. और आप तभी कर सकते हैं जब आप समझेंगे कि परमेश्वर की आवाज को आप कैसे सुने। It's not running around some guru. ये किसी गुरु के पीछे भागना नहीं, It is not me who can help और anybody. ना ही मैं आपकी किसी की मदद कर सकता हूँ, It is you connecting with God. लेकिन ये तो आप हैं जो परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं। I can definitely be a help to you. मैं आपके लिए निश्चय एक सहायक हो सकता हूँ। I can be a guiding for a short time. मैं आपके कुछ समय के लिए आपकी अगुवाई कर सकता हूँ, But the most important thing is लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है you need to hear God for yourself. आपको खुद परमेश्वर की ओर से सुनना होगा अपने खुद के लिए। You don't need an agent. आपको कोई एजेंट नहीं चाहिए। God is not using agents. परमेश्वर एजेंट्स का उपयोग नहीं करता। God says, you are my child. परमेश्वर कहता है तुम मेरी I संतान will हो, talk to you. मैं तुमसे बात करूंगा। And I want to tell you, sir, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, God wants to speak to you. मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Man is unable to speak with God मनुष्य तो परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकता because of his sin, अपने पाप के कारण, because of his disobedience, अपनी आज्ञा भंग करने के कारण। because we are born in sin and curse. आप पाप और श्राप में पैदा हुए उसके कारण। How can that be removed? ये कैसे दूर किया जा सकता है? Even if you put 1 million fine, it cannot work. अगर आप 1 मिलियन का भी फाइन लगाए तो भी वो कुछ काफी नहीं है। Money cannot remove the sin. पैसा पाप को दूर नहीं कर सकता। So many religions have there in this world, but nobody has offered any solution for your sin and your इस personal संसार sin. में बहुत सी आस्थाएं हैं, लेकिन आपने जो पाप किए उसके लिए उसके लिए हल लेकर आने वाला कोई भी नहीं है। The angel told Mary, जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा call his name Jesus. उसका नाम तो यीशु रखना, That means उसका मतलब है he will set his people free from sin. वो निश्चय अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। Jesus came into this world यीशु इस संसार में आया just to give his life like an offering, बस उसने अपना जीवन एक बलिदान के रूप में दे दिया to live a holy life, कि वो पवित्र जीवन जिए। one day be sacrificed, एक दिन उसने बलिदान किया so that by shedding of his blood, कि उसके लहू बहाने के the द्वारा human race will be saved. मनुष्य जाति जो है वो उद्धार पा सके। Even Rigveda says the same thing. और यहाँ तक कि ऋग्वेद भी इसी के बारे में कहता है। I know of a sadhu who told me मैं एक साधु के बारे में जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया, that he said in Rigveda, उन्होंने कहा कि ये तो ऋग्वेद में बताया गया है। he told me, उन्होंने बताया God must come in the form of a human being, जरूरी है कि परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में आए, अवतार में आए live a sinless life, और पाप रहित जीवन जिए, and one day he must be butchered and his blood must be shed. और एक दिन उसे मारा जाए और उसका लहू बहाया जाए, And through the shedding of his blood, the whole humanity will be saved. और उसके लहू बहाने के द्वारा ही पूरी मनुष्य जाति बचाई जाएगी। And that is in Sanskrit, he told me, it's called Prachita Bali. और उन्होंने ये संस्कृत में मुझे बताया जो बहुत ही अच्छी तरीके से विवरण के साथ है। Now this Jesus अब ये यीशु came to die. वो आया, Nobody killed him. किसी ने उसे नहीं मारा, He came to offer his life, वो तो अपना जीवन देने के लिए to आया pay the fine for your sin, कि आपके पापों के लिए दाम चुकाए, so that ताकि the separation wall of our sin will be removed and we can talk back to our Father God. ताकि जो पाप की जो दीवार है जो हमें अलग करती है वो दूर कर दी जाए और हम अपने पिता परमेश्वर से बात कर That's सकें। what he said, I have come to bring peace. और इसीलिए तो वो कहता है कि मैं शांति देने के लिए आया हूं। Man and God become
again connected. मैं परमेश्वर और मनुष्य को फिर से जोड़ने के लिए आया हूँ, And God will start talking to you, और परमेश्वर आपसे फिर से बातें करने लगेगा, guide you, मदद करेगा, fill you with His peace अपनी शांति से आपको भरेगा and joy. और आनंद से भरेगा। My friend, मेरे दोस्तों, just like Joseph, बिल्कुल यूसुफ के जैसे you can also be free from wrong thinking and wrong decisions आप गलत निर्णय और गलत सोच से आजाद हो सकते हैं if you will seek अगर आप उसे खोजें, to be led by God, तो निश्चय कि आप परमेश्वर की अगुवाई में not चलें, by any other stuff. बाकी और किसी परिस्थिति से नहीं, Led by God. बस परमेश्वर की अगुवाई में God चलें। wants to help you. परमेश्वर इसे कर सकता है। If you need help, अगर आपको मदद चाहिए, you can always call us. निश्चय आप हमें फोन करें, We can advise you, हम आपको सलाह we देंगे, can counsel you, आपको सलाह we मशवरा can देंगे, pray for you आपके लिए प्रार्थना करेंगे and show you how you can connect with Him. और आपको बताएंगे कि कैसे आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं। But even now, लेकिन अभी इस समय if you want to connect, अगर आप जुड़ना चाहते I can help you हैं, मैं आपकी मदद by करूंगा। simply praying this prayer. बस ये प्रार्थना आप करें। I want you to just close your eyes मैं चाहता हूं कि आप अपनी and आंखें बंद sincerely करें, pray, बस ये प्रार्थना करें। and God will hear your prayer. स्वर्गीय पिता, Just say, आप बस इतना ही कहें, Jesus, यीशु thank you धन्यवाद for coming आने के लिए to die for me. कि मेरे लिए तू मरा। I am a sinful person. मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, I have committed lot of sins, मैंने बहुत से पाप किए, but I don't know how to be free. मुझे नहीं मालूम कि कैसे आजाद हो Free जाऊं। from guilt, मैं दोष से आजाद होना चाहता free हूँ, from sickness, बीमारी से आजाद होना चाहता हूँ, free from poverty, गरीबी से आजाद होना चाहता free from wrong thinking. हूँ, गलत सोच से आजाद होना चाहता हूँ। Only you can set me free. केवल तू ही मुझे आजाद कर सकता Wash है। me with your precious blood. प्रभु मुझे अपने बहुमूल्य लहू से I धो दे accept you as my savior, और मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण as करता a हूँ। God sent sacrifice for my sin. परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया। Fill me with your peace. मुझे अपनी शांति से भर प्रभु, Help me to listen to you. तेरी सुनने में मेरी मदद कर। I want to obey you. मैं तेरी आज्ञा मानना चाहता I हूँ, want to read the Bible. मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। Speak to me. मुझसे बात कर, Lead me मेरी अगुवाई कर so that I will please you. कि मैं तुझे सच में देख पाऊं, I'll be a good father. कि मैं निश्चय अच्छा पिता बन I'll जाऊं, be a good mother. मैं एक अच्छी माता बन I'll जाऊं, be a good son. एक अच्छा बेटा बनूं, I'll be a good human being. मैं एक अच्छा मनुष्य बनूं, Not confused with wrong thinking. मैं अपनी गड़बड़ी में गलत सोच में न फंसा रहूं, Not allowing anybody to twist my thinking. किसी और को मैं अपनी सोच को बदलने न दूं, But you will guide me. लेकिन प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Friends, thank you for listening to this program. दोस्तों, ये प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद। You have a beautiful future. आपके पास में एक बहुत ही सुंदर भविष्य है, You have a fantastic destiny. आपके पास में बहुत ही अद्भुत मंजिल है। Don't let wrong friendship, गलत दोस्ती, wrong philosophies, गलत तत्वज्ञान, फिलोसॉफीज, drugs ड्रग्स को spoil your life. आपकी जिंदगी बर्बाद न करने God दें। loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता Jesus loves you. है, यीशु आपसे प्रेम करता God है। bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Bye bye. बाय बाय। With all my heart, I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all